So, namaste and a very good evening to all the Khayal community members and also to all the Khayal team members. Let us start with today's session. आज का सेशन शुरू करने के पहले मैं अगर आप पहली बार हमारे इवेंट पे आए हैं तो आपको बताता हूँ कि खयाल कम्युनिटी इज अ कलेक्शन ऑफ एल्डर्स एंड सीनियर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। हम पूरे देश से हैं और रोज हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, सेशंस होते हैं स्पेसिफिकली डीलिंग विद इश्यूज विद सीनियर्स एंड एल्डर्स। अब ये अलग अलग एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स को बुलाते हैं जो सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उनके साथ जो खास करके प्रॉब्लम होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, उनके बारे में हम और जानकारी लेते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन टुगेदर एज एन एंटायर कम्युनिटी। Not only that, we also have many sessions in which we work with preventive care। जैसे कि आपको पता है, अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं या आप योगा करते हैं और यू कीप ऑन मूविंग योरसेल्फ, तो इससे आपकी जो मोबिलिटी है वो बरकरार रहती है। तो वी ऑल्सो ट्राई टू पुट गुड हैबिट्स इन आवर कम्युनिटी मेंबर्स एंड फॉर दैट वी हैव अ सेशन एवरी डे इन द मॉर्निंग from 8 o'clock in the morning to 9 o'clock in the morning. We have different yoga experts that come and teach us different asanas and also exercises. We also have dances like Zumba, which are specifically tailored for elders and seniors. इसके अलावा 11 से 12 बजे भी हमारे अलग अलग एंटरटेनिंग सेशंस होते हैं। कभी कभी खाने के ऊपर होता है, कभी कभी गाने के ऊपर होता है। तो ये सारे सेशन सुबह हम रखते हैं 11 से 12 और शाम को 5:30 से 6:30 बजे रोज हमारे जो सेशन which our members love to come are on special sessions with experts. Sometimes we talk about technology, we talk about online fraud, या आज जैसे आपको पता है we are meeting an expert, we are meeting doctors and we are going to talk about medical problems that are specifically faced by elders and seniors. And I would like to introduce to you our Khayal community team that takes care of all the activities जो आपके लिए सारे सेशंस लाता है। तो उसमें है राइसा जी, चिन्मय जी, योगिनी जी और मैं। और इसके अलावा भी आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो खास करके सीनियर्स और एल्डर्स के लिए डिजाइन है वो भी खरीद सकते हैं हमारे ऐप के द्वारा। जैसे कि ये नेक पिलो है जो आपके नेक को राइट सपोर्ट देगा बिकॉज इट इज मेड आउट ऑफ मेमोरी फोम। या आप हमारे ख्याल टी शर्ट्स भी खरीद सकते हैं जैसे कि मैंने पहना है। तो इफ यू आर अ बिग फैन ऑफ द ख्याल कम्युनिटी यू कैन ऑल्सो बाई दी टी शर्ट्स विच आर अवेलेबल इन 4 sizes on our Khayal app. And specifically, if you are facing any issues with pain or with swelling, you can also use our orthopedic heating pad, also available on our Khayal app. तो अगर आपको कोई questions या queries है, you can definitely go ahead and check up with our team and you can call us or you can also visit our website that is www.khayal.com. आज we have a very important session and today's session is how you can take care of your knee pain। बहुत बार हम देखते हैं because of knee pain, because of a lot of issues with your mobility, you know, your entire lifestyle is challenged। इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें जो आपको अभी करनी चाहिए, घर के काम या to play with your grandchildren or even to go down with a walk and meet your friends, you are not able to do it because of your knee pain। So to go ahead and address that issue and to find out the problems and the solutions, we have Dr. Ketan with us। Dr. Ketan, a very good evening and a warm welcome to the Khayal community। I've already told you and showed you what the Khayal community is. We do a lot of activities with our seniors and elders, and I'm sure, you know, as you associate with us and as you associate with the Khayal community, you will also learn a lot of things about them. So they're very active bunch of members. But I would also like to tell you a little bit about Dr. Ketan. So Dr. Ketan is a physiotherapist. He has got about 5 years of experience in dealing with different, you know, body aches and joint issues. And his qualification again, जैसे हम हमेशा कहते हैं ख्याल कम्युनिटी में इतने सारे अल्फाबेट्स है, तो डेफिनेटली डॉक्टर केतन हैज लर्नड अ लॉट, ही हैज स्टडीड अ लॉट and he is going to come and share all his knowledge and information with us today. So he has done his BPTH at Seth GS Medical College and at KEM Hospital and also done his MSO TPT.
Like I told you, he's got a specialization of 5 years experience working in manual therapy, cupping, and dry needling. So, Dr. Ketan, before we even start today's session, I want to know a little bit about what you have been working with the seniors and elders for so long. Great. Thank you, Vikas ji. Great to associate with Khayal community and really appreciated the work that the Khayal community is doing. I believe we have a great team today to join us, about more than 70 team members that have joined. I feel that this session would be helpful for all of us to learn and know. I would request any questions that would come, we can address all your queries today. Just to tell about me, I am a physiotherapist, graduated from St. GS Medical College, KM Hospital, which is in Mumbai. I practice, see patients. I have my clinical practice in Mumbai, where I treat geriatric patients. We deal a lot of issues related to orthopedics, neurological conditions like post-paralytic patients are there. In orthopedic, we deal with knee pain, neck pain, back pain, which are generally seen in geriatric patients. We use different modalities during treatment, which can be manual therapy. It can be in electrotherapy, we use different modalities like ultrasound, TENS, IFT, all these modalities in physiotherapy. Plus, the most important thing is the exercises. So exercises, which are the self-healing medications. That is what we say. And it's very important today to know, like everybody knows that we need to exercise, but what is the right amount and in what way it needs to be done is, I think, where we need to brief about it. So today we'll understand what are the general causes of knee pain. I think most of us know, like at some point of time we have knee pain, but then how to address it? Is it serious? Or it can be addressed at home? Do we need to see a doctor? So all these questions we'll be addressing today. I think any questions, if you have, we can have it post the session. I have a small presentation. We have few exercises as well that we'll be recommending that you can do at home, which can help you relieve your knee pain. That's great, Dr. Ketan. So we're very excited about today's session. तो आज का सेशन ऐसे होने वाला है कि डॉक्टर केतन इज गोइंग टू गिव अ स्मॉल प्रेजेंटेशन और हमारी थोड़ी समझ जो है अबाउट नी पेन उसके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे, थोड़ी और इंफॉर्मेशन हम लेंगे. उसके बाद अगर हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को थोड़े क्वेश्चंस है या डाउट्स है तो आप जरूर हमें पूछ सकते हैं. यही नहीं, उसके बाद भी अगर आपको स्पेसिफिक कोई आपके केस के कोई डाउट्स है तो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद डॉक्टर केतन. एंड सिंस यू आर पार्ट ऑफ द खयाल कम्युनिटी, we will try to address it and help you as much as possible. So Dr. Ketan, we are also going to be talking in a little bit of mix of Hindi and English, so most of our audiences can try to understand that. And as you see, we have already about 80 members. More of our members will join in. But the most important thing is that अगर आपको इसमें कोई अच्छी information मिलती है, जानकारी मिलती है, make sure you also go ahead and tell it to your friends and to other people of your age, because as you age, ये सारे issues आते हैं. It is very natural, So let us see how it happens, and let's see what Dr. Ketan has to say about today's session. Thank you, Vikas. As हम एक मिक्स ऑफ हिंदी इंग्लिश रखेंगे. प्लीज फील फ्री, अगर आपको लगा कि कोई पॉइंट्स नहीं समझ रहे हैं, यू कैन पुट इट डाउन इन द चैट सेशन. विल ट्राई टू एड्रेस दैट. तो हम स्टार्ट करते हैं. नी पेन, जो कि एक काफी कॉमन कॉज है. आज हर घर में हम कहते हैं कि एटलीस्ट एक पेशेंट ऐसा है. हम पेशेंट नहीं कह सकते, बट आज यंगर एज में, एज बढ़ते बढ़ते भी नी के ऊपर लोड आने की वजह से नी पेन होता है. तो काफी सारा उसका कॉमनली हम देखते हैं, चलते वक्त दिक्कत आती है, नी में पेन हो रहा है. इसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, हम बेसिकली ये होता क्यों है और कैसे स्टार्ट हो जाता है, इसमें हम क्या ख्याल रख सकते हैं जिससे आगे जाके प्रॉब्लम ना हो.
आजकल एक कॉमन सर्जरी भी होती है नी में, जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो मुझे काफी क्वेश्चंस आते हैं कि हमें नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करें तो वो बेटर है या नहीं है, तो कब करना चाहिए, व्हेन इज द राइट टाइम, सर्जरी करने के लिए कौन सा टाइम राइट है और कब होना चाहिए। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस है। तो हम आज थोड़ा सा बेसिक्स समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये नी में प्रॉब्लम होती क्यों है। नी जॉइंट जो है हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है। पूरे बॉडी का जो लोड है हमारे नीज पे आता है। हम जितना चलते हैं उनते, जब से हमने चलना सीखा, पूरे बॉडी का लोड जो है हमारे नीज पे आते हैं। तो राइट फ्रॉम दैट टाइम, जब से आदमी चलता है, पूरे बॉडी का लोड अपने नीज पे आता है। तो ये नी जॉइंट जो है बेसिकली ये बना कैसे है, मतलब हमारे जो जॉइंट्स है वो बोन्स से बने हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स। सो नी जॉइंट है वो 3 टाइप के बोन से बनता है। ओके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा नी जॉइंट है। आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो बोन है ये थाई बोन है। हमारा जो थाई, बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जिसको फीमर कहते हैं, ये थाई बोन है। ये बनाता है नी जॉइंट के ऊपर वाला पार्ट। नीचे जो बोन है, लेग का जो बोन है, उसे टीबिया कहते हैं। और ये जो बीच में नी कैप है, जिसको चिपनी बे कहते हैं हिंदी में, या मराठी में उसको वाटी कहते हैं, तो ये है पटेला, इसको कहते हैं पटेला। तो ये 3 बोन्स बना के हमारा नी जॉइंट बनाते हैं। तो थाई बोन जिसको फीमर कहा जाता है, लेग बोन जिसको टीबिया कहा जाता है, और पटेला है सेंटर में। अब ये तीनों जॉइंट्स बना के बनते हैं अपना नी जॉइंट। आप देख सकते हैं बाकी जॉइंट्स में जो कॉन्ग्रुएंसी होती है, मतलब एक जॉइंट दूसरे में कितना फिट होता है। कोई भी जॉइंट, उसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि वो किस तरह से फिट है एक दूसरे में कितना। जैसे अपना हिप जॉइंट है, वो एक बॉल सॉकेट जॉइंट है, वो दोनों बोन्स एक दूसरे में काफी फिट होते हैं। आप इसमें देखेंगे तो ए ऊपर वाला जॉइंट नीचे वाले जॉइंट पे जस्ट बैठ गया है, देयर इज नो सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट, ये बोन्स को सपोर्ट देने के लिए लिगामेंट्स होती है। हमारे आजू बाजू में नी के जॉइंट्स के एक लिगामेंट नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जॉइंट को स्ट्रेंथ देते हैं। प्लस आप ये जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं ये चीज, इसको कहते हैं कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज क्या करता है, बोन्स का स्मूथ मूवमेंट होने में हेल्प करता है। सो इट इज लाइक अ फ्लूइड, इट्स कॉल्ड अ साइनोवियल फ्लूइड, इट गिव्स लुब्रिकेशन। मतलब जॉइंट्स की स्मूथ मूवमेंट, जैसे गाड़ी में जो ग्रीस ये रहता है स्मूथ मूवमेंट्स के लिए, ओके, वो ऑयलिंग का काम करता है, जिससे बोन्स की मूवमेंट फ्री हो, जॉइंट्स का मूवमेंट फ्री हो। अब एज वाइज मैं सेकेंड इमेज करता हूं। सो ये वाले अगर इमेज में आप देखेंगे तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगामेंट दैट सपोर्ट द नी। नी में बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं जो नी जॉइंट को सपोर्ट करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, ये आता है आपके साइड में, नी के बाहर वाली साइड से। ये है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट जो अंदर वाली साइड से सपोर्ट करता है। नी में और एक इंपॉर्टेंट होता है लिगामेंट जिसका नाम है ACL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये नी को आगे नहीं जाने देता। जब आप पूरी तरह से नी आगे करते हैं तो एक लेवल के बाहर नहीं जाना चाहिए, उसको नी को जो स्टेबिलिटी देने का काम करता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। फिर है अपना मीडियल कोलैटरल, लैटरल कोलैटरल, एंड देन देयर इज मेनिस्कस। ये जो आप मून शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको कहते हैं मेनिस्कस। इनका काम है शॉक एब्जॉर्बर करना। सो ये कुशन करते हैं, जब भी हम चलते हैं नी के बोन्स पे लोड नहीं आना चाहिए है, ये काम करता है मेनिस्कस। प्लस ये आप देखेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज, एक लाइनिंग होती है, जैसे मैंने कहा कि इसको फ्लूइड, एक साइनोवियल फ्लूइड रहता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है। इसके वजह से ये बोन्स का मूवमेंट स्मूथली होता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो क्या होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड ड्राई अप होने लगता है, सूखने लगता है। हार्मोनल चेंजेस होती है बॉडी में, जिसके वजह से ग्लूकोसामाइन नाम की एंजाइम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे ये फ्लूइड का कंटेंट कम होता है।
तो ये फ्लूइड ड्राई होने लगता है और फिर बोन्स में रबिंग चालू होती है, फ्रिक्शन चालू होता है, घसने लगते हैं बोन्स। तो हमने बहुत हम सुनते हैं कि मेरे नी में गैप आ गया, गैप गैप आ गया। तो प्रॉब्लम क्या है मेरे नी में? तो नी में गैप है। तो गैप होना एक्चुअली ये हमें ये एक मिथ है, रॉन्ग है कि गैप आ गया। गैप होना अच्छी बात है, गैप कम होना प्रॉब्लम हो जाता है। सो हम एक्सरेज भी देखेंगे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर कहते हैं कि आप एक्सरे निकाल लीजिए, फिर कहते हैं कि गैप कम हो गया है। सो गैप कितना कम होता है और उससे क्या प्रॉब्लम आता है वो हम देखेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे नी में एज वाइज फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, जो ड्राई अप होता है। जब ड्राई होने की वजह से बोन्स में फ्रिक्शन चालू होता है, हड्डियां घसने लगती है। सिंपल इसमें कहेंगे तो हड्डी घसने लगती है, और जैसे वो हम और चलते हैं घसने, उस एक्स्ट्रा बोन्स फॉर्म होते हैं जिसे ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। ये ऑस्टियोफाइट्स होने की वजह से फिर पेन चालू होता है। अगर पेन होता है तो हम हमारा वेट शिफ्ट करने लगते हैं, हमारे चलने का ढंग बदल जाता है। पेन होने की वजह से हमारा जो फुट का प्लेसमेंट है, हम सही तरीके से नहीं चलते, और आगे जाके फिर क्या होता है, बोन्स में जो हड्डियां रहती है उसके डिफॉर्मेशन चालू होती है। सो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। पहले तो इसे इसके क्या कॉजेज है, ये ओवरऑल जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ये यंग एज से नी का ओवर यूज या रॉन्ग तरीके से यूज होने की वजह से नी में डैमेज चालू हो जाता है। सो हाउ डू वी नो दैट वी नीड टू टेक केयर and the knee how much it is damaged? So एक्सरे में जैसे मैं कह रहा था कि गैप होना, लोग कहते हैं कि मेरे नी में गैप आ गया, कि गैप आ गया, गैप कम होना इज अ प्रॉब्लम। सो इफ यू सी, दिस इज अ नॉर्मल एक्सरे, एक नॉर्मल नी का एक्सरे आप देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं अभी जो हमने फीमर का बोन देखा, और ये टीबिया, ये नीचे वाला बोन टीबिया। अब इसमें आप इन दोनों के बीच का गैप देखिए, इसके बीच में गैप है। तो इससे क्या होता है, गैप होने की वजह से आपका नी का मूवमेंट स्मूथली होता है, आप नी पूरी तरीके से बेंड कर सकते हैं, सीधे कर सकते हैं। अब ये गैप, जैसे कि आप दूसरा बाजू वाला जो एक्सरे है इसमें हम देख रहे हैं, तो जॉइंट स्पेस पूरा डैमेज हो गया है, पूरे बोन्स दोनों को चिपक रहे हैं। इससे क्या होगा कि नी पूरा पेशेंट बेंड नहीं कर पाएंगे, वो फोल्ड पूरा नी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जॉइंट स्पेस डैमेज पूरा कम हो गया है। ये एक दिन में या 2 दिन में नहीं हुआ है, दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। स्लोली स्लोली द नी स्टार्ट्स डैमेजिंग। अगर राइट टाइम पे केयर किया गया तो ये आगे प्रॉब्लम नहीं दे सकता। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर नीज, स्ट्रेंथन योर मसल्स, दैट इज व्हाट वील बी टॉकिंग अबाउट टुडे। नाउ नॉर्मली हम सामने वाले एक्सरेज, जो मैंने कहा कि 3 बोन्स है, फीमर, टीबिया और पटेला, ये 3 बोन्स है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मुझे नी में किस मतलब अंदर की तरफ पेन है, नी के सामने तरफ पेन है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से टाइप के नी कैप्स या क्या पहनूं? तो ये क्वेश्चन पे हम लोग बाद में आएंगे। मैं ये, आप पटेला और जो फीमर है उसका अगर आप गैप देखेंगे, ये सेकंड नीचे वाले जो 2 एक्सरे है, ये आपको दिखा रहे हैं कि नी के जो पटेला, जो चिपनी है, वाटी है, वो और फीमर के बीच का गैप भी होना जरूरी है। अगर वो भी चिपक रहा है, वो भी घस रहे हैं, इसका मतलब नी और डैमेज्ड है। इसीलिए कहते हैं कि नी का मुझे जो मेरी पार्टी है, पटेला के इधर मुझे मूवमेंट नहीं होता, वहां पे सबसे ज्यादा पेन होता है। जब मैं नी स्ट्रेट कर रहा हूं तब मेरे पटेला पे इधर पेन आता है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम व्हाट वी कॉल्ड एज पटेलोफीमोरल आर्थराइटिस। पटेलोफीमोरल मतलब पटेला और फीमर के बीच में जो गैप है, जब वो कम हो रहा है, उसमें घर्षण है, उसे कहते हैं पटेलोफीमोरल आर्थराइटिस। सो जनरली हम कहते हैं इस टर्म को ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियो माने बोन, आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, बोन्स की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। नाउ व्हेन इट इज रिलेटेड टू इफ दिस स्पेसिफिक, तो इट इज द टीबियोफीमोरल। टीबिया और फीमर के बीच का गैप कम हो रहा है तो इट इज टीबियोफीमोरल। एंड इफ इट इज मोर ऑफ पटेला और फीमर देन इट इज अ पटेलोफीमोरल। अब why do we know need to know this?
जब हम एक्सरे निकालते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं, तो हमें बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है, हमें ये लगता है नी एक सिंगल जॉइंट है, बट उसके कौन से पार्ट में किधर पेन हो रहा है, उस हिसाब से आपका जो ट्रीटमेंट है वो डिफर होगा। आपके एक्सरसाइज अलग होंगे हर चीज के लिए। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमें हीट थेरेपी करनी चाहिए कि कोल्ड थेरेपी करनी चाहिए, ये भी हम आगे बात करेंगे। तो आपके कंडीशन के वाइज, आपकी इंजरी के वाइज, आपके ट्रीटमेंट वाइज हर एक का प्रॉब्लम अलग होता है। यही हमें आज जानना है, क्योंकि हमें सब एक कॉमन एक्सरसाइज प्रोग्राम, इट कैन नॉट बी फॉर एवरीवन। सो बेस्ड ऑन योर कंडीशन द एक्सरसाइजेस डिफर, द ट्रीटमेंट्स डिफर। सो डॉक्टर केतन, एक बात तो पक्की हो गई है कि योर नी जॉइंट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स जॉइंट। यहाँ से बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, क्योंकि अलग अलग हड्डियां हैं, अलग अलग लेगामेंट्स है और अलग अलग मसल्स है। एंड बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्शन इन एनी वन ऑफ दीज फैक्टर्स, इसमें से कुछ भी चीजों में अगर जो ठीक चलना चाहिए वो नहीं चलता, तो अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं और उसका सोल्यूशन भी इज वेरी टेलर मेड। तो जिस तरह की प्रॉब्लम है उसी तरह का आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सो ऑल्दो इट लुक्स वेरी सिंपल, बाहर से हमें इतना पता नहीं चलता, बट यू हैव शोन अस द एक्सरे, यू हैव गॉन अहेड एंड शोन अस द डायग्राम। नाउ वी अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नी जॉइंट। इट एंड ऑल्सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज जब से हम पैदा हुए हैं, या मैं ये भी कह सकता हूँ जब से हम चलने लगे हैं, तब से the knee joint has been taking the load of the entire body. So that's great. I mean, बहुत सारी चीजें पता चल रही है, and let's go ahead with the session. And if our members, our viewers are enjoying the session, you can definitely show us a very big thumbs up. You can also send it in the reactions so that we know you are understanding the session. So next, moving on, symptoms. What are the symptoms of osteoarthritis? Knee pain में आपको क्या symptoms आते हैं? Obviously, the starting symptom is pain. Okay. Now pain कौन से साइड पे है, किस जगह पे नी के है, पीछे है, आगे की तरफ है, अंदर की तरफ है, बेस्ड ऑन दैट आपका कंडीशन कौन सा पार्ट इंजर्ड हुआ है वो मालूम पड़ेगा। नॉर्मली इन ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन अंदर की तरफ, नी का जो मीडियल साइड कहते हैं, जैसे हमने एक्सरे में देखा, जो मीडियल साइड है वहां पे सबसे ज्यादा लोड आता है, इसीलिए पेन अंदर की तरफ होता है। सो नॉर्मली ये पेन कब होता है? सो अर्ली मॉर्निंग में, बेसिकली जब उठते हैं हम बेड से ये करके, मॉर्निंग में जब ये करते हैं तब मॉर्निंग में ज्यादा पेन होता है, और काफी चलने के बाद पूरा लोड आने के वजह से नी में पेन चालू होता है। सेकेंड है स्वेलिंग कैन बी वन ऑफ द सिम्टम्स। पैरों में नी में स्वेलिंग आ सकती है। नी पूरा जब चलने के बाद कहते हैं कि पूरा नी मेरा स्वेल होता है, चलने के बाद या खड़े रहने के बाद काफी टाइम, तो पूरा नी में स्वेलिंग आ जाती है, पटेला के इधर काफी पानी जमा हुआ जैसा स्वेलिंग आती है, नी फूल जाती है। कुछ कंडीशंस में वहां पे रेडनेस भी आता है, जिसे इडीमा कहते हैं। सो वहां नी स्वेलिंग हो सकती है, पूरा इडीमा आ सकता है, दैट कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स। इसमें क्या हो रहा है कि नी लोड नहीं ले पा रहा है, तो फ्लूइड पूरा एक्यूमुलेशन हो रहा है, वहां पे फ्लूइड जमा होते जा रहा है, दैट इज व्हाट इज स्वेलिंग आ सकती है। सेकेंड इज थर्ड इज क्रेपिटस। क्रेपिटस का मतलब क्या है? सो जब हम नी जॉइंट मूव करते हैं, तब अगर हड्डियों में आवाज आ रही है, कट कट करके आवाज आती है, उसे कहते हैं क्रेपिटस। इसका मतलब क्या है कि हड्डियां घस रही है आपस में। तो हम जब नी फोल्ड करने के लिए ट्राई करते हैं या सीधा करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तब जब जो आवाज आती है खटखट, इसका मतलब वो घर्षण हो रही है, इसे कहते हैं क्रेपिटस। दैट इज एन इंडिकेशन कि हड्डियां घस रही है। Then is stiffness. Stiffness is a very common symptoms, and in fact today I think most of you will agree कि the knee gets stiff. अभी ठंडी आने वाली है, अक्टूबर नवंबर का मंथ है, कोल्ड से जो नी में जो हमारे मसल्स है वो स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो पेशेंट कहते हैं कि हमें स्ट्रेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या बेंडिंग, पूरा नी मेरा बेंड नहीं हो पा रहा है, that basically the cause is stiffness, नी में stiffness आ गई है। सो इससे फिर हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं,
या इसमें हीट थेरेपी कर सकते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहां पे पेन कम होगा। एंड दैट इज द रीजन कि हम कहते हैं कि एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि नी मोबिलिटी जो है, रेंज ऑफ मोशन हमारा जो नी का है वो मेंटेन रहता है। आप जितना नी में रेंज लाएंगे उतना मूवमेंट फ्री होता है। सेकेंड है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के वजह से वहां पे जो भी टॉक्सिन्स जमा होते हैं दे आप फ्लोड, बेसिकली दे आर पुश्ड आउट, दे आर फिल्टर्ड आउट। एंड वहां पे फिर जो पेन केमिकल्स है वो भी बाहर पुश आउट होते हैं, तो पेन कम हो जाता है। हीट थेरेपी करने से भी क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, एंड दैट हेल्प्स बेसिकली टू रिड्यूस द स्टिफनेस एंड इंक्रीज द रेंज। सो हीट थेरेपी इज important. Now in the we'll be talking when is cold therapy is important. The last symptom is muscle weakness and deformity. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिकली, वेयर वी नेग्लेक्ट। ऑफ कोर्स पेन रहता है, हम पेन के लिए ओवरऑल सिम्टम्स कर लेते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है, पेन आ रहा है इसीलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम एक आध 2 दिन की मेडिसिन ले लेते हैं, पेन चला गया, देन वी फॉरगेट अबाउट इट। यस, सो हमें लॉन्ग टर्म केयर में हम नहीं ध्यान देते, हम शॉर्ट टर्म केयर में ध्यान देते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि चलो ठीक है, आप अभी के 3 months आप चला लेते हैं, एंड देन गोइंग ahead the problem becomes so severe that then it can go where you need a knee replacement. Okay, so care at the right time, अगर आप नीज का ख्याल राइट टाइम पे करेंगे तो नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मसल वीकनेस क्या है कि आपके नी के मसल्स का स्ट्रेंथ वीक है, इसीलिए नी लोड नहीं ले पा रहा है। देन व्हाट हैपेंस इज आपके बाकी मसल्स जो लोड लेना चालू करते हैं। सी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डीजेनरेशन, चाहे मैं हूं, आप है, हम सब है, एज के वाइज हमारे बोन्स में डीजेनरेशन होना काफी कॉमन है। ओके, इट इज अ एज रिलेटेड प्रोसेस, सब में होना है, मेरे भी बोन्स डीजेनरेट हो रहे हैं। हम ऑफ कोर्स फिर उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेते हैं, हमारे डाइट में केयर करते हैं, बट डीजेनरेशन इज अ एज रिलेटेड प्रोसेस, इट्स गोना हैपन। सो वो लोड फिर कौन लेगा? द मसल्स हैव टू टेक ओवर। आपके अगर मसल स्ट्रांग रहेंगे तो नी के बोन्स पे जो आने वाला लोड है दैट विल बी टेकन ऑफ। सो इफ मसल्स आर वीक दे नीड टू बी स्ट्रेंथन, और स्ट्रेंथन कैसे करेंगे? तो एक्सरसाइज से करेंगे। नाउ एक्सरसाइज में भी वील बी टॉकिंग डीपली अबाउट इट। लोग कहते हैं कि मैं तो आधा घंटे चलता हूं, मैं 1 घंटे चल लेता हूं, ओके, तो मेरा नी का तो ऐसे ही एक्सरसाइज हो रहा है। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनको स्कूल छोड़ने जाता हूँ, मैं मार्केट चले जाता हूँ, या मैं मेरे बच्चों के साथ बाहर तो मंदिर जाती हूँ मैं, तो मेरे नी मैं इतना तो चल लेती हूँ, तो मेरा एक्सरसाइज हो जाता है। तो क्या ये सही बात है? एज इन इसमें आपके एक्सरसाइज हो जाते हैं? इज वॉकिंग गुड, बैड? Okay, I would request responses from you. You can put it in the chat session. Is walking a right way is good for your painful knees, osteoarthritis knee, or it is not right? मतलब वॉकिंग अच्छा है नीज के लिए, पेन हो रहे तभी, या नहीं है अच्छा है? आप चैट सेक्शन में आपके रिस्पॉन्स डाल सकते हैं। नॉट राइट, ओके, नो, ओके, नो, not after certain age, okay, it's good, okay, no, not right, okay, very good, okay, yeah. So I think majority of them say not recommended, okay. So basically हमें ये समझना है कि walking लो, it should be gradual. We need to understand our body, okay. आप जब पेन में है, कोई जख्म होता है, इंजरी होती है, तो हम क्या करते हैं? अगर मुझे कोई जख्म हुई है, पेन कर रहा है, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा, उसे बैंडेज करूंगा, उसे सपोर्ट करूंगा टिल द टाइम इट हील्स। यस, जब तक वो ठीक नहीं हो रहा है तब तक उसको सपोर्ट देना, उसे आराम देना जरूरी है, राइट? बट पूरा आराम देना
उसे ग्रेजुअल लोडिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। जब बहुत पेनफुल नी है और आप आधा आधा घंटा, एक एक घंटा वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, बोल रहे नहीं मुझे एक्सरसाइज करने बोला है डॉक्टर ने, तो मैं 1 घंटा चलूंगा ही, तो ये गलत हो जाता है। Okay, walking is definitely good, but it has to be within certain limits, depending on your pain limits. अगर आपका पेन बहुत ज्यादा है, you need to give rest to the knee. You can do exercises, basic exercises. देखिए एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ वॉकिंग ही करनी है। एक्सरसाइज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। आप इन बेड, घर में बेड में ही इतने अच्छे एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एंड स्टिल यू कैन स्ट्रेंथन योर नीज। आपके नी की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। स्टिल यू कैन डू मच बेटर एक्सरसाइजेस, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। लोगों को ऐसा लगता है कि हमने 1 घंटा चल लिया तो ही एक्सरसाइज हुई, एंड देन दे पुश देमसेल्व्स। वो अपने लिमिट्स के बाहर अपने को पुश कर लेते हैं, जिसके कारण नी पेन बढ़ जाता है। यस, so that important thing is you need to judge your pain levels. एक सिंपल वे है, अगर आप 1 to 10 में आपके पेन को ग्रेड करेंगे, अगर पेन 5 के ऊपर है, okay, 50% से ज्यादा है, it is better to give rest to your knee. Okay, you can use heat therapy, you can use cold therapy, depending on what the knee is swollen or not, and then you can do basic in-bed exercises, avoid walking. अगर पेन 5 से कम है, 50% से कम है, you can do mild walking, okay? And gradually, step by step, देखिए हम जैसे हमने स्कूल में कैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, स्टेप बाय स्टेप गए। प्रॉब्लम आज क्या हो जाता है, हमें सबको पता है एक्सरसाइज बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सरसाइज कितने लिमिट में। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं तो वो डोसेज होता है, मॉर्निंग, afternoon, evening. Same for exercise it should be. If you try to eat everything at once, then it creates a problem. Like walking, लोग 1-1 घंटा, 1.5 घंटा चलते हैं, and then the knee muscles are not that strong, and the load comes on the bones. तभी पेन चालू हो जाता है। Okay, so we need to understand कि स्ट्रेंथनिंग जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है। मसल वीकनेस एक सिम्टम है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जिसका हमें ध्यान रखना है, लेकिन एक्सरसाइज शुड बी विद इन द लिमिट्स। ओके, पेन लेवल्स हमें जज करने हैं, हमें ओवरडू नहीं करना चाहिए, हमें ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी है जिससे नी पेन बढ़े। डिफॉर्मिटी क्या चीज है? व्हाट इज अ डिफॉर्मिटी? So, Dr. Ketan, as we are talking about the different types of exercises that we should be doing, हम ये भी कहते हैं कि हमें walking करना चाहिए, हमें अलग अलग exercises करना चाहिए। बट मैंने बहुत बार ये देखा है कि हम ये भी कहते हैं कि अगर हम घर का काम करते हैं, द घर का जो भी हमें डेली वर्क करना है, तो उसे भी बहुत लोग उसे एक्सरसाइज मानते हैं। तो क्या ये सही है कि घर का काम, इज इट इनफ ऑफ स्ट्रेचिंग, इज इट इनफ ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग, can be counted as an exercise, or exercise is very specific, it is certain range of motions that you have to do at certain speed for certain time to be considered as an exercise. तो यस, ये भी काफी कॉमन मिथ है। हम घर का काम करते हैं तो हम ये समझ के चलते हैं कि इससे भी एक्सरसाइज होती है। डेफिनेटली सी, आप जितना मोबाइल रहेंगे, हम ये कहते हैं कि आप घर में भी, इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑन बेड, आप डेली जो छोटे छोटे भी आपके वर्क है वो आप कर सकते हैं, दैट इज अ गुड थिंग। बट इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक रिलेटेड कि आपके नी का मसल स्ट्रेंथन हो रहा है। एक्सरसाइजेस आर वेरी स्पेसिफिक। अगर आप नी के स्पेसिफिक मसल को स्ट्रेंथनिंग करना चाहते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी डन, मतलब आप घर का काम कर रहे हैं तो इससे नी का मसल स्ट्रेंथन हो गया, ऐसा नहीं होता है, उतना काफी नहीं होता। आपको हर मसल के लिए एक अलग एक्सरसाइज होता है। तो सिर्फ घर का काम करने से एक्सरसाइज हो रहा है, ये एक रॉन्ग मिथ है। बट घर के काम में इन्वॉल्व होना एक अच्छी बात है। okay, instead of being on bed, being idle is the start of any illness.
जब आदमी बेड पे होता है तब इलनेस स्टार्ट होती है। तो आप जितना मूव करेंगे दैट इज गुड फॉर योर बॉडी। हमने लास्ट एक वर्ड देखा था डिफॉर्मिटी, मसल वीकनेस के बाद हमने एक वर्ड देखा डिफॉर्मिटी। अब क्या हो जाता है, नी पेन की वजह से हमारा चलने का जो पैटर्न है, नॉर्मली वो हम वेट शिफ्ट करने के लिए हम ऐसे चलते हैं जिसमें हम वेट साइड टू साइड, नॉर्मली लेडीज में देखा जाता है जो काफी वेट वाइज ओबेसिटी रहता है, क्योंकि नी पे पूरा लोड आ रहा है, तो वो क्या करते हैं ऐसे साइड टू साइड अपना वेट शिफ्ट करके चलते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है, धीरे धीरे हमारे पैरों का जो लोड है और पैरों में जो एंगल है वो एंगुलेशन चेंज हो जाता है, पैर बेंड होने लगते हैं। आगे जाके इसमें डिफॉर्मिटी हो सकती है। डिफॉर्मिटी को तो इसमें ये है, आप जो पहला इमेज देख रहे हैं इसे कहते हैं नॉर्मल। ओके, ये नॉर्मल जो इंडिविजुअल्स है उनके नी का अलाइनमेंट है। अगर ये इस तरह अंदर की तरफ बेंड होता है, चलने रॉन्ग चलने के गेट पैटर्न की वजह से अगर नी जॉइंट अंदर बेंड हो रहे, दिस इज कॉल्ड वारस डिफॉर्मिटी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कॉमनली ये कंडीशन देखा जाता है कि लोगों को वारस डिफॉर्मिटी, जहां पे पैर अंदर की तरफ ऐसे बेंड हुए हैं। सो दिस इज वेरी कॉमन एंड इसके वजह से पैर अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं, चलने का पैटर्न डिफर हो जाता है एंड चलने में दिक्कत आती है चलते वक्त। नाउ इसमें क्या हो गया, आपका नी जॉइंट तो बेंड हो गया, इसका इम्पैक्ट ऊपर तक आ रहा है, हिप्स पे आता है, बैक पे आने लग जाता है। So it is not only the knee joint that is getting affected, the other joints also start getting affected slowly. Then what we see, the third image is called a valgus knee. इसको knock knee भी कहा जाता है, जहां पे पैरों के पैर बाहर की तरफ बेंट है। ओके, दे आर बेंट आउटवर्ड्स, इनको knock knee भी कहा जाता है। और वैरस को दूसरा नाम है बो लेग, इसको बो लेग कहते हैं जब पैर अंदर की तरफ बेंड हो रहे हैं। Okay, so in the X-rays or you can do a self examination, आप घर पे भी चेक कर सकते हैं। आप आपके घुटने अगर दोनों पैर जोड़ के खड़े रहे और दोनों घुटनों के बीच में से दो उंगली अगर पास हो रही है, तो अगर वैरस बेंड है तो आपका नी का गैप वुड बी मोर देन 2 फिंगर, 2 फिंगर से ज्यादा गैप होगा, और जो इसे कहते हैं सेकेंड इमेज वैरस। और अगर इस तरह से वो बेंड है उसे कहेंगे वैरस। ये हम क्यों कह रहे हैं, जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर एडवांस स्टेज पे आर्थराइटिस आपका काफी इतना बढ़ गया है जहां पे नी बेंड हो रही है, देन इट कैन बी अ कंसिडरेशन कि हम रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए सोचे या नहीं सोचे। ओके, नाउ हमने बात किया ऑस्टियोआर्थराइटिस, बोन्स हम जान गए, एक्सरेज बेसिकली क्या प्रॉब्लम होता है, फ्लूइड कम हो जाता है, हड्डी घर्षण होती है, लेकिन हम क्या इसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं, घर में क्या छोटी छोटी चीजें को हम ध्यान रख सकते हैं जिससे नी पेन बेंड नी पेन अवॉइड कर सके। पहली बात, अवॉइड सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे बैठना अवॉइड कीजिए, या लो पोजीशन या लो स्टूल लो सोफा पे बैठना आप अवॉइड कर दीजिए। इसका क्या कारण है, जैसे कि हमने देखा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में नी के मसल्स आपके वीक हो जाते हैं। अब नी मसल्स वीक है, जब आप ग्राउंड से ऊपर उठना है आपको, तो पूरा लोड फिर से नी पे आ रहा है, पूरा लोड नी पे आप ये कर रहे हैं तो पेन बढ़ जाता है। सो इसीलिए आपको एडवाइज्ड है कि आप चेयर पे बैठिए, सोफा पे बैठिए, बेड पे बैठिए, अवॉइड सिटिंग ऑन द ग्राउंड। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड है आप क्रॉस लेग सिटिंग। क्रॉस लेग सिटिंग मतलब मराठी में कहते हैं मांडी मांडी घालून बसने। ओके, पैर फोल्ड करके बैठना, नीचे जब बैठते हैं तो मांडी डाल के बैठते हैं, वो आपको अवॉइड करना है। इससे क्या है, पैर और जो ये हो जाते हैं, नी पे और प्रेशर आने लगता है, तो वो आपको अवॉइड करना है। सेकेंड पॉइंट हम जब देख रहे हैं, अवॉइड बेंडिंग द नीज इन सिटिंग। ये कितने जन कर रहे हैं, आप में से कितने जन हाथ रेज कर दीजिए, अगर आप बैठे हैं चेयर पे एंड यू आप बेंडिंग योर नीज बैकवर्ड, आप अगर बैठे हैं और आप नी पीछे की तरफ बेंड करके रखे, इज इट अ राइट हैबिट और अ रॉन्ग हैबिट?
Okay, 3 people have raised their hands. So आप हम जब बैठ रहे चेयर पे हम जब बैठते हैं, if we are bending our knees, okay, it is compressing, वो नी जॉइंट को और कंप्रेस कर रहा है। तो इसीलिए हमें जब भी बैठ रहे पैर लंबा करके बैठना चाहिए, फैला के बैठना चाहिए। अगर आपका चेयर थोड़ा हाइट पे है तो आप एक लो स्टूल रख सकते हैं जिसपे आप पैर को रेस्ट कर सकते हैं, बट पैरों को अंदर की तरफ ऐसा मोड़ के चेयर पे बैठना गलत आदत है। ओके, इसे हमें चेंज करना चाहिए, हमें पैर बेंड करके नहीं बैठने चाहिए। ओके, दैट इज, ये एक्चुअली और फ्रिक्शन और घर्षण कराता है नी के बोन्स पे। ओके, कैन आई मूव अहेड? थर्ड पॉइंट इज अवॉइड यूजिंग इंडियन टॉयलेट। ओके, इंडियन टॉयलेट अगेन लो सिटिंग में नीचे बैठना पड़ता है, बैठ के उठने में तकलीफ हो जाती है। सो ये यू कैन यूज अ वेस्टर्न टॉयलेट और अ कमोड चेयर। ओके, वेस्टर्न टॉयलेट पे इजीली बैठ सकते हैं, नी जॉइंट पे प्रेशर नहीं आता है। इंडियन टॉयलेट अवॉइड करना है। अगर वेस्टर्न टॉयलेट का फैसिलिटी नहीं है, यू कैन यूज अ कमोड चेयर। आई विल शेयर द after the session there the image how a commode chair looks like, so you can get an idea. अगर वेस्टर्न टॉयलेट का फैसिलिटी नहीं है तो एटलीस्ट द कमोड चेयर कैन बी यूज। फोर्थ पॉइंट इज अवॉइड ट्रेडमिल ट्रेनिंग। आप में से कितने जन अगर वॉकिंग अवेलेबल नहीं होता है तो जिम जाते हैं, या सोसाइटी में जो जिम फैसिलिटी रहती है या घर में ट्रेडमिल पे वॉकिंग करते हैं? इस ट्रेडमिल वॉकिंग बेटर कि बाहर चलना बेटर है? ट्रेडमिल पे चलना नी पेन में अच्छी आदत है या अच्छी आदत नहीं है? यू कैन पुट इन द चैट सेक्शन आपके कमेंट्स। ट्रेडमिल पे चलना अच्छी आदत है, यस और नो? यस, इन नी पेन बेसिकली ट्रेडमिल पे चलना अवॉइड करने बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है जब आप ट्रेडमिल पे चलते हैं आपके नी मसल्स का काम बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ चलने का काम नहीं बट कंट्रोल, आपको बैलेंस कंट्रोल भी करना पड़ता है, और उसमें आपके नी का जो लोड है वो बढ़ जाता है और नी डैमेज फास्टर होता है। तो नी पेन अगर है तो बेसिकली आपने ट्रेडमिल पे चलना अवॉइड करना चाहिए। आप नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं बट ट्रेडमिल वॉकिंग शुड बी अवॉइडेड। सेकेंड, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो कैसे चढ़ना चाहिए? पहले कौन सा पैर रखना चाहिए, दर्द वाला पैर या नहीं दर्द वाला पैर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप में से कितने जन को अगर पता है सीढ़ी चढ़ते वक्त कौन सा पैर पहला रखते हैं? सो जब हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, जो पेन नहीं हो रहा है, जो दर्द नहीं हो रहा है, वो पैर आप पहला रखेंगे। आप चाहिए तो सपोर्ट लेंगे, बाजू में जो रेलिंग्स है उसको पकड़ के आप चल सकते हैं ताकि नी पे लोड कम आए। और जो दर्द नहीं होने वाला पैर आप ऊपर जब चढ़ रहे हैं तब दर्द नहीं होने वाला पैर रखेंगे। इसका उल्टा है नीचे उतरते वक्त। नीचे उतरते वक्त, सीढ़ियां नीचे उतरते वक्त आप क्या करेंगे, जो दर्द वाला पैर है वो पहला रखना चाहिए और उसके बाद आपको उतरना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीढ़ी चढ़ने के टाइम में नी, अगर नी पेन है तो कैसे, ऊपर जाते वक्त आपको पेन फ्री मतलब दर्द नहीं होने वाला पैर पहला रखना चाहिए, और नीचे उतरते वक्त आपको जो दर्द होने वाला पैर है वो आप पहला रखेंगे। इससे क्या होता है, क्योंकि जैसे आप सीढ़ी चढ़ते पूरा लोड बॉडी का एक ही पैर पे आता है। ओके, तो जब आप शिफ्ट कर रहे हैं अपने बॉडी का वेट, तो पेन फ्री वाले जो लेग है उस पे आना चाहिए, इसीलिए आपको ये मैकेनिज्म अडॉप्ट करना है। ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द कॉमन कॉजेस? ये जो हमारा नी पेन हुआ है, जैसे मैंने कहा कि एक दिन में तो नहीं हुआ है ये काफी रिपीटेड ट्रॉमा, मतलब हम रिपीटेड ट्रॉमा मतलब नी को इंजरी, जैसे कभी ना कभी नी को इंजरी हुई थी, कोई गिर गया था या चलते वक्त मोच आ गई थी, ये होते होते धीरे नी में डैमेज चालू होता है, साइनोवियल फ्लूइड ड्राई अप होता है, अंदर स्मॉल इंजरी, जो हमने मेनिस्कस देखा, जो गादी है नी की, उसमें इंजरीज होते हैं, अगर उसको डैमेज हो गया, वो भी अगर डैमेज है तो नी का डीजनरेशन फास्ट होता है। पुअर डाइट, अगर आपके डाइट में
राइट कंटेंट नहीं है, आप ठीक से खा नहीं रहे हैं। देखिए आप एक्सरसाइज काफी कर लेंगे, लेकिन अगर डाइट में हमारा प्रॉपर नहीं है तो देन नी को स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। सो डाइट में अगर हमारा कैल्शियम कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट जो मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं रहेगा तो भी नी का डिजनरेशन फास्ट होगा। It is very common in females. Now, why do I say this? In females, basically post-menopausal age में हार्मोनल चेंजेस होती है बॉडी में। ये हार्मोनल चेंजेस के वजह से आप बोन्स का जो डीजनरेशन है, ऑस्टियोपोरोसिस फास्ट होता है, जिसके वजह से बोन्स वीक होती है। इसीलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस फीमेल्स में काफी कॉमन देखा जाता है। और एक कारण है ओवरवेट, ओबेसिटी। आज के इसमें काफी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है ओवरवेट, ओबेसिटी होना। तो जितना वेट है, देखिए अगर आप अपना वेट कैरी कर पा रहे हैं, अगर इवन इफ अ पर्सन इज 80 kg बट ही इज एबल टू मूव फास्टर, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। But a person who is overweight, obese, and cannot carry his weight, the load is coming on the knee. That is one of the major reasons which can lead to knee osteoarthritis. Overuse of the knee. ये मैं कब कह रहा हूँ overuse? देखिए पहले कैसा था, 50 years के बाद ये डिजनरेशन चालू होता था। आज हम देखेंगे तो अर्ली 40s में भी लोगों को प्रॉब्लम चालू हो गया है। लोग कहते हैं हमारे नी पेन हो रही है थोड़ा सा चलने के बाद भी। तो ओवर यूज मतलब हमें लिमिट, जैसे मैंने कहा कि वॉकिंग की लिमिट्स हमें नहीं पता है। लोग नी को ओवर यूज कर रहे हैं, चलते जाते हैं या ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, बट स्पेसिफिक नी के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बट ज्यादा चलेंगे। दिस इज व्हाट यू आर नॉट स्ट्रेंथनिंग द राइट मसल्स। आप राइट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग नहीं कर रहे, दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम। तो ओवर यूज ऑफ द नी इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। इम्प्रॉपर फुटवेयर, क्या ये कारण हो सकता है? फुटवेयर आपका ठीक नहीं है तो नी पेन होएगा? यस और नो? यस, या। सो आपका फुटवेयर भी, जैसे आप वॉकिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर शूज पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके शूज इंसोल कुशन नहीं है तो पूरे, जब हम चलते हैं हमारा पूरा इंपैक्ट वेट ग्राउंड पे जाता है, वही ग्राउंड का रिएक्ट फोर्स अपने नी पे आता है। तो अगर आपके शूज प्रॉपर नहीं है वो भी एक कारण हो सकता है नी पेन के लिए। सो हमें प्रॉपर फुटवेयर यूज करना भी काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम कह रहे थे कि हमें टिप्स नी पेन में यूज करने के लिए, नी पेन है तो हमने कुछ टिप्स देखे कि क्या आप कर सकते हैं। क्रॉस लेग सिटिंग अवॉइड कीजिए, ग्राउंड पे सिटिंग अवॉइड कीजिए। वैसे ही एक यूज है, आप नी के सपोर्ट्स यूज कर सकते हैं। आप घर पे अगर काम कर रहे हैं, घर का काम अगर खड़े रहने का काम है, किचन में आप काम कर रहे हैं, घर पे गार्डनिंग का अगर काम हो रहा है, उसमें अगर आपको काम करते वक्त एटलीस्ट फॉर द सपोर्ट, देखिए एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग जो नी का होना है वो एक प्रोसेस है। तो जब तक नी को स्ट्रेंथ पूरा आता है तब तक उसको सपोर्ट देना जरूरी है। ओके, वॉकिंग के टाइम में भी आप सपोर्ट यूज कर सकते हैं। तो जब तक आपके नी में स्ट्रेंथ आ रही है ये आपको सपोर्ट देंगे। सो डिफरेंट टाइप के सपोर्ट्स होते हैं। आपने देखा है हम बहुत कॉमनली नी कैप्स के बारे में जानते हैं। ओके, so like this kneecaps what are available in the market. Okay, so these are simple kneecaps that can be worn like socks. तो ये क्या काम करते हैं? ये आपके नी को सपोर्ट देते हैं। पूरा जो नी का लोड है इट ऑफलोड्स इट till it goes to the passes on to the knee joints. Bones पे लोड आने नहीं देता है। So these are available in the market. Why I am showing you this is there are different types. काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कौन सा नी कैप पहनना चाहिए। तो हमने हमारे पहले स्टार्टिंग के स्लाइड्स में देखा कि आर्थराइटिस के दो टाइप्स हो सकते हैं। टिबियोफिमोरल मतलब ऊपर वाला जॉइंट और नीचे वाले जॉइंट्स का गैप, अगर वो कम है तो डेफिनेटली आप रेगुलर नी कैप यूज कर सकते हैं। हम स्क्रीन पे जो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो इमेज है बेसिकली एक डैमेज ऑस्टियोआर्थराइटिक नी की है। और जब नी इतना डैमेज हो गया है
तब बेसिकली एक सर्जरी होती है जिसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं, जिसमें बोन्स को रिप्लेस किया जाता है एक मेटल इम्प्लांट से। इसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अभी काफी कॉमन सर्जरी हुई है। तो ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि नी रिप्लेसमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, हमारे लिए अच्छी बात है करना, अच्छी बात रहेगी या नहीं रहेगी। ओके, तो इसके 3 कारण हम जानते हैं जब नी रिप्लेसमेंट करना ठीक है। अगर पेन अनबेरेबल है, अगर मैं 1 से 10 पेन ग्रेड करूं और आपका पेन 9 या 8 ऑन 10 है, जो कि कंटिन्यूअस है, मतलब 1-2 वीक आप फिजियोथेरेपी, मेडिकेशन, सब ट्रीटमेंट करने के बावजूद अगर आपका पेन 8 to 10 या 9 on 10 मेंटेन रह रहा है, देन द पेन लेवल्स आर वेरी हाई। सेकेंड, अगर आपको डिफॉर्मिटी है, जैसे हमने देखा कि वायरस या वैल्गस डिफॉर्मिटी है, पूरा नी बेंड हो गया है, तो इसके वजह से क्या होगा कि आपका नी के साथ साथ अपर जॉइंट्स भी डैमेज होने लग जाएंगे। तो नी रिप्लेसमेंट में वो अलाइनमेंट भी करेक्ट किया जाता है। सो देन आई थिंक नी रिप्लेसमेंट इज अ बेटर ऑप्शन। सो पेन इफ इट इज टू हाई, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपका नी जॉइंट डैमेज इतना ज्यादा है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये नी काफी डैमेज्ड है, पेशेंट इज नॉट एबल टू मूव, मोबिलिटी, आप नी जरा भी बेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो एक कारण हो सकता है नी रिप्लेसमेंट के लिए। सो प्लस एज वाइज देन देयर आर कोमॉर्बिडिटीज एज वेल, हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होता है, थायराइड होता है। अगर ये फैक्टर्स भी डॉक्टर कंसिडर करते हैं कि सर्जरी करनी जरूरी है या नहीं जरूरी है, दैट इज वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर आई थिंक। बेस्ड ऑन पेशेंट टू पेशेंट ये डिफर होता है। आइडियली सी कंजर्वेटिवली आपका जितना नेचुरल जॉइंट आप कंजर्व कर पाएंगे, इसीलिए आप राइट टाइम पे अगर अपने नीज का ध्यान रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे राइट अमाउंट में, नी को सपोर्ट करेंगे, मूवमेंट मोबिलिटी रखेंगे, उतना बेटर रहता है। तो आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर पेन इतना ज्यादा है विच इज सो पेन वर्सेस, अगर आप लाइफस्टाइल कंपेयर करें, अगर आपको पेन फ्री ये हो रहा है लाइफस्टाइल, तो देन इट इज बेटर टू गो फॉर अ नी रिप्लेसमेंट, बिकॉज ये काफी इजी सर्जरी होगी। अभी 3 to 4 days में पेशेंट को डिस्चार्ज मिल जाता है। थर्ड डे पे पेशेंट कैन स्टार्ट वॉकिंग विद अ वॉकर, एंड इसके सक्सेस रेट्स काफी हाई है। सो इट इज नॉट लाइक नी रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहिए, बट इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। ओके, हमें हर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट सर्जरी होनी चाहिए ये भी राइट बात नहीं है। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अगर आपका एडवांस स्टेज पे आर्थराइटिस है, देन रिप्लेसमेंट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। वेन हॉट एंड वेन कोल्ड थेरेपी, कब हमें गर्म सेक लेना चाहिए, कब हमें ठंडा सेक लेना चाहिए। ओके, नॉर्मली हमने एक वर्ड सुना था स्टिफनेस, नी का जॉइंट अगर काफी स्टिफ हो गया है, आपको नी बेंड नहीं करने मिल रहा है, अभी जैसे विंटर चालू होगा तो उसमें ठंडी के वजह से, या जो लोग एसी में काफी रहते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि नी का आपका जॉइंट स्टिफ होता है, आप नी को बेंड नहीं कर पाते। तभी हीट थेरेपी, हीटिंग बेल्ट, या आप वार्म वाटर, हॉट वाटर फोमेंटेशन जिसे कहते हैं, या कुछ लोग ऑयल्स यूज करते हैं, वार्म ऑयल को वार्म करके लाइट मसाज अगर करते हैं, दैट हेल्प्स बेसिकली कि स्टिफनेस कम होने में हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, नी की मोबिलिटी बढ़ती है। सो इट्स अ गुड ऑप्शन। ओके, स्टिफनेस रहेगा तो। अगर आपके नी में स्वेलिंग है या कोई गिर गया है, अगर गिर गए और नी में स्वेलिंग आ गया है, तो वो टाइम पे जब भी स्वेलिंग है तब आपको कोल्ड थेरेपी यूज करनी है, क्योंकि स्वेलिंग है, अगर आप उसमें हीट यूज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और स्वेलिंग बढ़ेगी। तो जब भी स्वेलिंग है तब आपको कोल्ड थेरेपी करनी है। कोल्ड की वजह से क्या होगा कि वहां का इन्फ्लेमेशन कम होगा, स्वेलिंग कम होगी एंड पेन कम होगा। So that is basically when to use a heat therapy, when to use a cold therapy. Okay. Any questions? I think we'll take questions for this afterwards. But I think ये एक general doubt रहता है कि heat therapy कब use करें, cold therapy कब use करें. This is about the commode chair. जहाँ पे आप western toilet facility नहीं है, तो something like this can be used. Okay. A commode with it's like a chair.
Okay. I think we can take questions now. Okay. So thank you very much, doctor, for this presentation that you have given. और हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है and we try to understood the entire structure of the knee, the usual problems that happen और ये क्यों होते हैं because there are so many complicated structures और उसके अलग-अलग जो stages है and at every stage there are different solutions which are definitely very specific to the individual and very specific to that knee or to that leg at that point of time. तो बहुत सारी चीजें समझने मिली है and I'm sure हमारे जो ख्याल community के members है have understood a lot of things but still would have a lot of questions. तो अभी हम एक एक करके सारे questions लेंगे. We'll have Dr. Ketan who's going to try his best to take all your questions and give you a satisfactory answer. But मैं आपको ये कह देता हूँ कि अगर बहुत specific issue है या बहुत ही आपका specific problem है, तो maybe we will not able to answer it here. You may have to actually go to a doctor and try to search, research a little bit more on it and try to do a couple of tests and find out. So, doctor, I will go ahead and take the questions one by one. मैं एक एक करके हमारे participants से, हमारे ख्याल community members से questions लेता हूँ. So can we start now? Sure, sure. All right. So we have Bhupinder Chawla ji. I'm going to take the first question from her. नमस्ते भूपिंदर जी. And मैं आपको unmute कर रहा हूँ. आप अपना question पूछ सकते हैं डॉक्टर जी के साथ. या मुझे ना इनर साइड ऑफ द नी में बहुत पेन होता है. मेरे राइट लेग की इनर साइड ऑफ द नी पेन्स अ लॉट. Okay. And when I went to the doctor, they say it's because of the increase of uric acid. Okay. I just wanted to know, but that it happens too often. Okay. So uric acid basically is a byproduct. जैसे urine basically यूरिया जो बाहर निकलता है. हाँ जी, हाँ जी. In case if it is in excess, तो वो joints में deposit होता है. One of the reasons अगर uric acid बढ़ रहा है और joints में deposit हो रहा है, that is one of the reasons कि uric acid आपके joints में deposit हो रहा है. So इसको basically medicinal treatment लगती है. आपको मेडिसिन दिए यानी वो दवाइयाँ देते हैं यूरिक एसिड कम करने की, तो ठीक हो जाता है. यस. सो एंड प्लस उसमें एक्सरसाइज भी हेल्प करेंगे क्योंकि वो वॉश आउट करने में हेल्प करेगा. ओके ओके. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग है, थोड़ा डाइट पे आप फ्लूइड इनटेक, वाटर इनटेक अच्छा रखिए जिससे ये टॉक्सिन्स वॉश आउट करने में हेल्प करेंगे. ओके ओके ओके. थैंक यू सो मच. थैंक यू. माय प्लेजर. Okay. Next question we'll take from Shailesh Kumar ji. Namaste Shailesh Kumar ji, very good evening and your question. Very good evening Vikas ji and Dr. Ketan. My query is like this. My elder sister gone for knee transplant. She was suffering from severe pain and she was advised for knee transplant and she had done it, but still she is facing the pain problem. And she is doing the exercises, taking the medicine and all that. So what more can be done in this case? It's been how long after the surgery? It is around about 6 months. Around 6 months. Yeah. Okay. So basically, see, post surgery also it is very important to have the right exercises, right mobility, because there will be a factor of pain. But I think it has to be within a month with right strengthening exercises, it can come down. Okay. So based on the case, what can be the cause of pain that we need to judge why post surgery still the pain is there. Because of the doctor who operated her advised for the light exercises earlier. Right. And she was doing that, but no improvement was there. That is the matter of concern. So basically, I think it depends on case to case basis. There may be some post surgery
sometime what happens, there are post-surgery complications, the nerve is handled. Sometime, so based on the individual testing, it can be found out why post-surgery still the pain is there. But the doctor says that there is no issue of surgery, post-surgery. It is Okay. quite okay. There is no query like this. And one more thing, she has been detected sciatica. So is it possible that this sciatica problem is causing this pain, knee pain? It depends basically. It needs a brief assessment of the patient. We'll need to see the patient. Okay. So Right. based on, because there are, after seeing the patient, we'll be able to comment whether the pain is either due to sciatica or is it because of the post-surgery that the pain is there, or the knee muscles still giving the pain. That So means your simple advice is this, that whatever the exercise is advised to her, she should continue to do it. we have to see the exercises. Presently, I don't know what exercises are being That's done. why I'm saying that whatever the doctor has advised her to do the exercises, she should continue and do it, and under the supervision of the doctor. Yeah, under the supervision of the doctor. True. Yes. I think that may help. Yes. Okay. Thank you, doctor. Thank you, Vikas. थैंक यू शैलेश जी. इसके बाद हम जाते हैं रीना जी के पास, और we have more of our members who have gone ahead and raised their hands. So we will try to address as many as members that we can, but let me tell you Dr. Ketan will keep on coming and will be associated with the Khayal community. तो हम और sessions रखने वाले हैं. This is in association with Visco, and we are tying up with Visco for a lot of other things also. Soon you will also have a lot of the products from Visco which are there for your body support available in the Khayal app. So up tak they are not available, but eventually you will be able to see that and you will be able to purchase that. Also for special rates for the Khayal community members. So we'll go to Reena ji after that. Namaste Reena ji, आप अपना question Dr. Ketan को पूछ सकते हैं अभी. Yeah, good evening, Dr. Ketan. Good evening, sir. I got my knee surgery 7 years back. Am I audible? Yes. Please go. Acha, 7 years back, sometimes there is a swelling. Like I try to walk earlier, I used to walk for an hour or so. Now I'm able to walk only for half an hour. I get tired. So is it okay? Are you using any knee support or without support? No, I'm not using any knee support. I just wear the shoes, normal shoes. Am I supposed to use some knee support for this? You can try a knee support and check if the swelling is not coming with that. So a knee support would help till the knee muscles get strength. Okay, and can I apply that ice pack for swelling? Yes. Post your walk, you can apply a ice pack that will help to reduce the swelling. Okay, and what about the exercises for this? Yeah. So what we'll be doing today, being the first session, I think, so we have briefed about what can be the causes. The next session, what we can do is we'll have a demonstration of different exercises in knee pain that we can do. So we'll have a proper demonstration where we'll be showing, and all of us can be doing the exercises. So these are simple knee exercises that can be done, which can strengthen the knee. So maybe we'll keep a next session for that as well. Acha, I can do any type of exercises since it's almost 7 years. I can raise my legs. I would like know more about it. Anything, see, any type of exercises which will put strain on the knee, like in case of Zumba exercises in gym, what they do, or treadmill walking is not advisable. Anything that is sorry, that I don't do. Only with the simple exercises you can do. You can use a resistant band, a weight cuff, different types for the knee. Static cycling you can do. Okay. That will help to strengthen the knee. Okay, anything that puts load on the knee, where there is involvement of more thrust that will put on the knee, that should be avoided. Okay, doctor. And one more thing, I am having a severe neck pain
for the last many years, and I got my MRI done also. C5, C6, C7, my nerves are compressed. And doctor has advised me for the surgery. I don't want to go for the surgery. I mean, I have constant pain in the neck. Sometimes I take Ultraset. I go for physiotherapy. They give me IFT, TENS, ultrasonic, heat pad and everything. I get relief for some weeks. Again, it starts. It depends basically how much is the nerve root compression. In case it can be managed conservatively, I think physiotherapy with exercise can help. But we need to see the exact reports and do a individual assessment. To comment basically now would be too earlier. So assessment and a little detailed reports, I think we can, I'll have my numbers shared. We can have an offline conversation regarding it. Okay, thank you so much, doctor. Next time, please guide us for the neck payment, neck Definitely. exercises also. Sure. Take care. Thank you so much. It was a wonderful session. Pleasure. Thank you, Reena ji. So we have about 10 minutes, and we will try to cover as many as questions that we can. Just request to all of you, just keep your questions a little brief. हम कम से कम टाइम में आपके सारे क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, तो अपने क्वेश्चंस को थोड़ा ब्रीफ रखिए. तो डॉक्टर केतन is going to be there today and he will be coming for other sessions also. आज हमने सिर्फ नी पेन के बारे में फर्स्ट सेशन लिया है. जैसे डॉक्टर केतन ने कहा है, हम नी पेन के खास एक्सरसाइजेज जो होते हैं which will work on strengthening your knee, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अभी नी को सपोर्ट देना है, उसे स्ट्रेंथन करना है, ना कि हमें कोई हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज करके या फास्ट एक्सरसाइज करके उसे और डैमेज करना है. तो ये सारी चीजें, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टाइड अप विद विस्को एंड डॉक्टर केतन. हम ये सारे सेशंस आपके लिए करते रहेंगे, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू पुट इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. तो अगर आपको चाहिए तो वो आप बाद में भी देख के उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसके बाद हम वोरा जी के पास जाते हैं. नमस्ते वोरा जी, वेरी गुड इवनिंग. हेलो, नमस्ते. नमस्ते. मेरे को आई एम 74. चेयर लेवल से भी नीचे उतरते समय एक लेग से मेरे को डर लगता है, क्योंकि 55 years back one ligament was torn because of falling at the volleyball. Then लेकिन nowadays I am lateral movement होता है टेबल टेनिस में. I am playing almost 1 hour टेबल टेनिस every day. उसमें मेरे को कोई पेन नहीं होता है, और मेरे को नीज में ऐसा कोई भी पेन नहीं है, लेकिन वो लिगामेंट टॉर्न है. तो फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका, या सपोर्ट लेना चाहिए, या वो एक्सरसाइज में उठा बसा म्हणतात ना, उठ बैठ तक वो एक्सरसाइज किए तो चलता है क्या, आई डोंट नो. लिगामेंट जैसे इंजरी आपने कहा कुछ साल पहले 55 years back. Yes. वो हिल नहीं हुआ. So there are different ligaments basically. बहुत सारे ligaments है, तो उसमें से एक हाथ लिगामेंट का जो इंजरी होता है, तो अभी क्या हो रहा है, वो it's on the inner side basically. तो अभी वो लोड दूसरे जॉइंट्स पे, दूसरे लिगामेंट्स पे आ रहा है. as you said कि you are playing, तो आप एक नी सपोर्ट यूज कर सकते हैं, तो आगे जाके वो लोड दूसरे लिगामेंट्स पे ना आके इंजरी ना. So I think you can use a knee support while playing. Okay. And regarding exercise, वो वाटी खुला रखने वाला यूज वाटी करना खुला. क्या? Yes. And उठक बैठक से बेटर हम जब नेक्स्ट सेशन करेंगे, I'll give you the list of exercises. Okay. Thank you, doctor. Pleasure. Thank you. Take care. We'll go to Kameshwar Rao ji after this. Thank you, Vora ji. हेलो डॉक्टर, गुड इवनिंग. Good evening. हेलो, हाँ, सुनाई दे रहा है आपको मेरी बात? हाँ, बोलिए. मैं ये कह रहा था कि आई एम ए फुटबॉल प्लेयर, बहुत फुटबॉल खेला हूँ, नी बहुत बार डैमेज हुआ है, जो हुआ दैट इज ऑल द पास्ट, उसमें मैं नहीं जाऊँ. लेकिन अब बोलते मेरे को डॉक्टर एडवाइस करता है आप नी स्ट्रेंथन करो, तब आपको कोई सर्जरी की कोई जरूरत नहीं पड़ी. तो उसके लिए उन्होंने 2 एक्सरसाइज बताया था, एक हाफ स्क्वाट मारने का और सीढ़ी चढ़ना उतरना, एटलीस्ट डेली 50 स्टेप्स ऊपर चढ़ना नीचे उतरना. ये दोनों करो, प्लस स्किपिंग अगर हो सकता है, अगर दर्द नहीं करो,
दिस इज सफिशिएंट और आप यू विल सजेस्ट समथिंग एल्स? सर जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले कहा कि हम जो हम नी का रिहैब या नी एक्सरसाइज का बात जब करते हैं, हम नॉर्मली क्या हो जाता है कि ये एक फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड जैसा एक्सरसाइजेस है। तो ये जो आप एक्सरसाइज कह रहे हैं ये ऑलमोस्ट थर्ड 10th स्टैंडर्ड के एक्सरसाइज है, थर्ड 5th to 10th। तो हमें पहला कैसा है कि इन बेड मतलब बेसिक नी के ऊपर फोकस जो होते हैं ऐसे कुछ एक्सरसाइज होती है, तो हम स्टार्ट वहां से करते हैं, फिर बेड साइड एक्सरसाइज करते हैं, देन वी गो टू स्टेयर क्लाइंबिंग, स्किपिंग। दीज आर एडवांस लेवल एक्सरसाइजेस। Being a sports person, definitely your muscles would be a little stronger, but before that, I would advise that we would do the knee focus exercises, then you can move on that. ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू कामेश्वर जी। राजेश शर्मा जी के पास जाते हैं इसके बाद। नमस्ते राजेश जी। नमस्ते, हाउ आर यू विकास जी? आई वांट टू, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मुझे 5 साल से राइट साइड में अथलेटिक्स घुटने में था, लेकिन 3 साल से मुझे कोई पेन नहीं हुआ, लेकिन इस बार सडनली पेन हुआ और मुझे फिजियोथेरेपी भी कराना पड़ी और लेफ्ट साइड में भी स्टार्ट हो गया है। तो मैं एडवाइस लेना चाहूंगा कि मुझे वेजिटेरियन डाइट पे क्या क्या लेना चाहिए और मुझे फिजियोथेरेपी पे डिपेंड रहना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? So basically diet regarding, I think I won't have the speciality to comment, मेरा वो speciality नहीं है, but in terms of vegetarian diet आप at least milk जिसमें कैल्शियम कंटेंट है या प्रोटीन रिलेटेड जो है पनीर या प्रोटीन जो सब ये रहते हैं वो मिल्क में ले सकते हैं। दैट विल हेल्प। एटलीस्ट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खा सकते हैं। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट बोन का स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ बढ़ने में हेल्प होगा। बट आई थिंक आप स्पेशलिस्ट, आई थिंक एक डाइटिशियन का ओपिनियन बेटर रहेगा टू कमेंट ऑन द डाइट पार्ट। सेकेंड है आपने एक्सरसाइज के बारे में पूछा। हाँ, मैंने एक्सरसाइज के बारे में पूछा है और फिजियोथेरेपी के लिए भी मुझे जाना पड़ा था, तो मैं गया था। जब मैं फिजियोथेरेपी करता हूँ तो ठीक रहता हूँ, अदरवाइज मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं हमेशा नी कैप पहनता हूँ तो मुझे रिलीफ मिलता है। राइट, तो या विलोनी जेल लगाता हूँ। हाँ, तो ये इंडिकेशन क्या कर रहा है कि आप जब फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तब तक के लिए आपका पेन क्यों जा रहा है, तभी वहां पे जो मोडालिटीज यूज करते हैं या एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तभी पेन जा रहा है। तो नी को पूरा अच्छी से स्ट्रेंथनिंग अगर आप वो कंटिन्यू आपको घर पे करना जरूरी है, तब आपका नी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सो आपको कंटिन्यू थोड़ा फोकस नी के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज पे देना पड़ेगा। ये विंटर में ही होता है, समर में नहीं होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। यस यस, आपकी बार फर्स्ट टाइम समर में हुआ है, नहीं तो अदरवाइज मेरे को दिसंबर में होता था और फरवरी में ठीक होता था। यस, क्योंकि जकड़न तभी विंटर में ज्यादा होती है जॉइंट्स की। ओके, बट इस बार जो समर में हुई है उससे क्या एथलेटिक्स बढ़ गया है या आई हैव टू फॉलो? सो बेसिकली नी का लोड जो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट्स पे, दूसरे लेग पे आ रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है। क्योंकि आपका नी एक पेन हो रहा है तो आप लोड दूसरे नी पे कर रहे हैं, ये एक इंडिकेट कर रहा है उसे। Okay, we'll take the next question from Shushma Sharma जी। हमारे पास और बस 4 मिनट है, तो I will try to cover as many as members I can। नमस्ते सुषमा जी, आपका क्वेश्चन फॉर डॉक्टर केतन। मैं ये जानना चाहती थी, मेरे समटाइम्स माय लेफ्ट नी इज मोर पेनफुल एंड समटाइम्स माय राइट नी, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? कौन सा कि लेफ्ट पे ही प्रेशर है या राइट पे है? कभी लेफ्ट ज्यादा पेन करती है, कभी राइट। सो स्टार्ट बेसिकली देखिए, ये क्या होता है कि हम जब चलते हैं, जो हमारे बॉडी का एक पैटर्न ऐसा है कि हम जिस तरफ पेन है वो बॉडी अवॉइड करती है। तो धीरे धीरे आपका चलने का पैटर्न ऐसा होता है कि आपका लोड एक नी से दूसरे नी पे जाता है। दैट इज वाई कभी नी लेफ्ट में आ रहा है पेन या तो राइट में आ रहा है। बेसिकली जिससे स्टार्ट हुआ, जो साइड से पेन स्टार्ट हुआ, दैट कैन बी द मेजर कॉज।
उधर पेन अवॉइड करने के लिए आपका जो पैटर्न चेंज होके दूसरी तरफ आता है, राइट की साइड पे. सो दैट कैन बी द रीजन. बट सी एक्सरसाइज ऐसा जरूरी नहीं रहता कि आपको राइट का ही करना है या लेफ्ट का करना है. आप दोनों पैरों का एक्सरसाइज करेंगे, दैट वुड बी ऑल्सो गुड फॉर बोथ द नीज. सो व्हेन यू डू द एक्सरसाइजेस, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में पेन हो रहा है, राइट में नहीं हो रहा है तो नहीं करनी है. दोनों पैरों की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. सो दैट विल हेल्प टू स्ट्रेंथन देम. Okay. Thank you so much. थैंक यू सुषमा जी. शर्मिष्ठा जी के पास जाते हैं अभी. नमस्ते. Hello, Vikas ji. Good Namaste. evening. Good evening, doctor. Good evening. I am Kailash Nath Gupta, 70 years old. I have been suffering from osteoarthritis in my right knee. But for last month, my left knee is also affected. I consulted orthopedic surgeon. He advised me painkiller, that is Tadamol and ointment Volitro and Cartigen. My question is that Cartigen, as was advised to me, I understand that because cartilage is poor, so Cartigen tablet capsules have been advised to me. But can I go for its substitute, that is भारतीय जन औषधि परियोजना में ग्लूकोसामाइन सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड 500 mg plus diacerin 50 mg. That is a combination. One of my friend advised that it is better combination, better substitute. Should I go for it or not? Honestly, sir, basically to comment on medicine would be, we'll have to see the combinations and all. This presently to comment on medicines with the right form online. We'll have to go through the exact prescriptions. So here we won't be able to comment on the medicine part or the prescription part. Really sorry about that. But glucosamine as a general, it's glucosamine medicines are given basically to increase the cartilage cushioning. Yeah. So that's what I can say. Yeah, Google studies also confirms that way. But as I got and advised that this substitute is a better combination, glucosamine with diacerin. That's why my question was there. This would be not the forum, sir. So we talk about medicines, and I won't be the right person presently to comment on medicines or the substitute here. So I'm sure we can take that question, to a medical practitioner who is, who's licensed to give you medicines right now. Yes. अभी हम बस जो नी पेन के बारे में समझ रहे हैं, and like we are trying to go ahead and answer as many as questions. It's already time up. अब 7 बज गए हैं, but I will take Dr. Ketan's permission and take the last few questions if it's possible. आशा जी के पास जाता हूँ मैं. आशा जी, your question? Yes, I am having, doctor, good evening. I am Good having cramps. Sometimes I have cramps in my, usually in my right leg. And then I am, the back side of my leg in the near the knee is paining, back side. It pains. Not the front one, the back side. So these are basically indication that the calf muscles are there are cramps. So stretching of the calf muscles can help. Simple way to do that, you can, in the sitting position on the chair also, you can put your toe up and down like 20 times. That will help the mobility of the calf muscles. Also, you can take a towel and pull up from your foot, okay, putting the leg straight. That will help stretching the calf muscles. We'll be demonstrating the calf stretching exercises in the next session. But this is an indication that your calf muscles are tight. Cramps I get, sometimes I get, very severe cramps, So Yeah. what is this? I mean, what is the cause of this?
is your fluid intake right? Like, how is your fluid intake? If you're not taking enough fluid, water intake is low, that also is an indication that the frequency of cramp is high. Okay. Also, So I should calcium take more content, low fluids. calcium content can be also one of the reasons for increased frequency of cramps. Okay. So more consumption of what fluids, I think. Yeah. Fluid should help. Also, you can get your calcium levels checked. Okay, let's go to Nutan ji. In the meantime, we'll have Kiran ji coming back for her question. Namaste Nutan ji, आपका question? नमस्ते विकास जी, गुड इवनिंग डॉक्टर। एक्चुअली evening. मेरे एक नी में पहले राइट में हुआ था, तो नी सपोर्ट से 3-4 महीने लगाया तो ठीक हो गया। उसके बाद अभी लेफ्ट में शुरू हो गया, और लेफ्ट में मेरा पहले एंकल और जो टिबिया फिबुला है वहाँ फ्रैक्चर हो गया था। तो वो मैं प्लेट डली पहले, फिर वो निकली, मतलब काफी टाइम हो गया इस चीज को, बट अभी भी वो पेन शुरू हो जाती है कभी भी। Okay. तो वो फिर आपने- नी में और पैर में इकट्ठा और स्वेलिंग भी हो जाती है और फिर चला नहीं जाता। आपने फिजियोथेरेपी कुछ ट्रीटमेंट लिया था उसके लिए? नहीं, अभी तो नहीं ले रही हूँ। तो पूछा था तो डॉक्टर ने तो ऐसे कोई टेस्ट नहीं किया, सीधा ही बोला आर्थराइटिस है, नी रिप्लेसमेंट करा लो। तो मैंने बोला मैं ओवरवेट हूँ, तो नी रिप्लेसमेंट क्या काम करेगा? कहते नहीं कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा फिर फायदा क्या करवाने का, उससे तो जब तक चल रहा है चलते हैं फिर। बेसिकली मैंने जैसे कहा कि ओवरवेट होना प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप आपका वेट कैरी कर सकते हैं। ओके, वेट होना, बट वेट अगर आप कैरी कर सकते हैं तो देन इफ यू आर टेकिंग द लोड तो प्रॉब्लम नहीं है। सो आप अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, नी में जब स्ट्रेंथ आएगा थोड़ा बहुत वॉकिंग की स्टार्ट कर दीजिए, नी का सपोर्ट यूज कर दीजिए, एंड देन यू कैन सी अ डिफरेंस। सो जैसे ग्रेजुअली आप करेंगे धीरे धीरे डिफरेंस आप में दिखने लगेगा। एक्चुअली वही थोड़ा मुश्किल हो रहा है वॉकिंग करना। इवन अगर मैं किचन में भी आधा घंटा से ज्यादा खड़ी हो गई तो पेन स्टार्ट हो जाता है, वरना ठीक रहता है मुझे। अगर थोड़ा वॉकिंग के पहले आपको नी के एक्सरसाइज जो है स्ट्रेंथनिंग वो स्टार्ट कीजिए, फिर आप वॉकिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। So thank you, Dr. Ketan, and a very big thank you also to Visco for arranging this session with the Khayal community. जैसे आपने देखा है, these are very important issues that our elders and our seniors from the Khayal community, and not only that, from all the seniors are facing. And we will be in the future having more sessions with Dr. Ketan and with Dr. Visco. So we will let you know the schedule for these sessions. इसके बाद जो हम सेशन करने वाले हैं, we will try to find the solutions for the problems that we have discussed today. We will try to give you practical ways to reduce your pain by using exercises and by using heating pads and methods, and also by putting those socks and different things that are available depending on your pain. So right now our whole work with the Khayal community and with Visco is try to identify your issues and try to solve them. So iske liye we have one more session. I would like all of you to attend that session to understand a bit more, and we will also have more time with Dr. Ketan so that we can take more of your queries and try to answer them. Okay, so I hope all of you enjoyed today's session. A very big thank you to Dr. Ketan and Visco for organizing this session with the Khayal community. बहुत सारी चीजें we take it as hearsay. हम इसके बारे में बात करते रहते हैं, and we think it is it is the reality, it is truth. But when it comes to your body, we have to go to experts, we have to go to doctors, we have to take those tests and try to figure out what is exactly wrong, and then follow the solutions that have been given by experts and doctors. क्योंकि हम बहुत बार डर के वजह से ये नहीं करते हैं, बहुत बार हमें लगता है अरे दिस इज मैनेजेबल, मैं कर लूंगा, और बहुत बार हमें ये भी लगता है अभी क्या 10-20 साल ही है मेरे, तो व्हाई शुड आई वरी अबाउट इट, सो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन फैक्टर. ये हम सोचते हैं, लेट अस नॉट से दैट हम इसके बारे में सोचते नहीं है, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू with Visco, with Khayal community, is try to understand these issues and try to
find solutions for you so that you can have a very, very, successful and a very happy aging process. So thank you once more, Dr. Ketan. Also, a very big thank you to all the Khayal team members. Thank you to Raisa ji, to Prachi ji, to Chinmoy ji, and to Yogini ji for assisting us with today's session. And we hope to see all of you again tomorrow morning for the yoga session. जैसे आपको पता है, we are also working on preventive care. We are trying to reduce the issues and the problems by attacking them before they come. तो अगर आप ये रोज सुबह 8 से 9 उठ के एक्सरसाइज करने का मन कर लेते हो, तो उससे आप ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम कर सकते हैं. ये प्रॉब्लम्स तो आने वाले हैं, बट अगर ये 2 साल में आने वाले हैं तो आप उसे 10 साल के बाद इसे फेस करोगे. So that is what we are trying to do here with the Khayal community and with this. Thank you, everyone. I hope you enjoyed today's session. Thank you, everyone. Thanks. We'd like to Take give a care. very It was big great thumbs to be with everyone. Dr. Ketan. Thanks. Big thumbs up for this amazing session today. Thank you very much. Goodbye, Pleasure. everyone. Thank you. Thank you. Bye-bye.